मैं गन्ना ते तू गुड़ सज्जणा, आपां चक्की दे दो पुड़ सज्जणा। तू जेड़े राहे पै जावें असीं उसे जाइए मुड़ सज्जणा। तू अंबर साडी जिंदगी दा असीं लोहां तेरे तारियां दी। जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी। जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी। तू टाणी ते असी पत्ते आ, तू कापी ते असी गत्ते आ। तेरी खुशी नू दूना कर दे जो रौनक दे ओ टप्पे आ। तू पा कोई बात विलखण जई साडी जुम्मेवारी हुंगारियां दी। जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी। जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी। कदे मासे ते कदे तोड़े वे असी तूड़दे वावरोले वे। तेरे नाल साडा घर वसदा ए तेरे बिन सज्जणा खोले वे। रह चढ़दी कला विच लाउंदा तू असी गूंज हां तेरे जकारियां दी। जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी। जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी। अगले पासे बहुत सामने थे। हाँ सामने बहुत। जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी। जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी।
out by blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggressions, and divisions in society and lead us towards growth, liberty, and equality. सब्र कर, सब कुछ होगा, जैसा तुझे चाहिए वैसा ही होगा। एक बार भरोसा करके देख उस सतगुर पर, तेरे हाथों में दुनिया का हर तोहफा होगा, तेरे हाथों में दुनिया का हर तोहफा होगा। A warm good morning to all of you. हमारे हरमन प्यारे बाबा जी हमारे बीच पधार चुके। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही भूल जाओ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही भूल जाओ ਤਾਂ ਕੀ करिए। मेरे सतगुरु के दीदार में एक अजब सा सुरूर है, मेरे सतगुरु के दीदार में एक अजब सा सुरूर है। जिसने भी दर्शन पाया हुआ हर गम से दूर है, जिसने भी दर्शन पाया हुआ हर गम से दूर है। Now, I would like to invite Armandeep Singh to give a welcome speech. Honorable Baba Ji, all guests present here, Principal Ma'am and all the worthy teachers, a very warm good morning to all of you. I am Armandeep Singh, student of Tejal Rasila International School, Saidpur. Heartily welcome our Baba Ji and all present here on the behalf of students on this annual function. As we all know, Hazur Maharaj, son Subhash Chandra Singh Ji, such a great and noble personality, does not require any formal introduction. Babaji is not a mentor, but also idol for us. It is not easy to believe that whatever Babaji, Rasila Ramji, was once dreamed is being fulfilled in front of our eyes. Here, we can see a blend of extraordinary and smart students. Our school is progressing day by day because of Babaji's blessings, contribution of our principal ma'am and teachers. At last, but not least, I am sure our school will reach its peak. I again greatly thanks to Babaji for giving us your valuable time and blessings. Thank you. बुल्ले शाह चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बालते देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलते देखे, जिन्ना दा ना जग ते कोई ओ भी पुत्र पालते देखे। लोकी कहंदे दान निगलदी, मैं तां पत्थर गलते देखे, जिन्ना ने कदर ना। इस दुनिया ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। शरण जो जन भये
हर स्वामी सुख है गामी आनंद मंगल रस कणा हर हर स्वामी सुख है गामी आनंद मंगल
किया है। ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। Now, I would like to call upon our respected principal ma'am to please come on the stage and say few words of wisdom. Hello. Respected Babaji and Babaji's beloved Sangat Radha Swami ji, I heartily welcome you all on the behalf of students and staff on reaching school premises for attending Hajur Maharaj Sant Tarsila Ram Ji's birthday celebration and today's prize distribution function. So congratulations to all of you and thank you. Thanks to all that you have given us your so precious time. Thank you. We all know that October month is very important and very delightful for us, as in this month Hajur Maharaj Sant Tarsila Ram Ji born on 30th October 1921, and from last 10 to 12 years we are celebrating this day with full excitement and enthusiasm. So I have no words how I explain Hajur Maharaj Ji's praise in words, because words maybe have limits, but Hajur Maharaj Ji's praise beyond the limits. When past comes in our mind, when we remember Hajur Maharaj's memories, then we have no words to explain their blessings, their power, their grace, their love that He showered on us. And we are so lucky that we got such a great Guru and that we have spent a lot of time with Babaji. And in reality, the time, the moments that we have spent with Babaji, that is our great asset of life. So thank you Babaji, you are always with us and you have never not gone anywhere, and presently you are residing in Hajur Maharaj Sant Subhash Chandra Singh Ji, and we are thankful to you that you have given us such a great Guru, same like you. As for Hajur Maharaj Sant Tarsila Ram Ji, we have no words, same here for you Babaji. As Hajur Maharaj Sant Tarsila Ram Ji served the society throughout their life, same Prajan Sadguru Ji serving the society and fulfilling the requirements of needy people. Hajur Maharaj Ji often visits the school, and whatever we demand as per our needs, Hajur Ji immediately accepts and fulfill our requirements within short period of time. Last year I told to Babaji that there should be shed at main gate because parents students face difficulties due to adverse weather conditions, and Hajur Maharaj Ji has accomplished that project within few days. And this year I told to Babaji that Babaji we should have sound system so that we can do small programs easily and we do not need to from our order outside. And very soon Hajur Maharaj Ji provided us sound system. And so previous 4 to 5 years Hajur Maharaj Ji fulfilled the requirements of washroom, ramp, stage, shed at main gate, sound system within school for students. Except this, Hajur Maharaj Ji is providing free education to the needy students. And with the Babaji's blessings, our another branch is also running in Lakhimpur, UP. So Babaji, we are thankful to you for your great services that you are providing to the students for their bright future. Thank you, Babaji. Now, achievements of students. With Babaji's blessings, our students are doing very well in every field, whether it is academic, sports, drawing, art and craft. We got 100% result in 8th and 10th class. Our 2 students, Anmol Singh Chahal and Kushpreet Kaur, got married in 8th class. Harmanpreet Singh, our best student in drawing, got 2nd position at state level and won cash prize of 5100 rupees.
boys under 17 compete with nearby schools and got first position at zone level and selected for district level. Our Kho-Kho team of girls also got first position at zone level and selected for district level. Our students Akashdeep Singh, Gurpreet Singh, Jashandeep Singh selected at state level in Kabaddi. So at last I can say that although Babaji we are not perfect, but with your blessings we are going to achieve perfection. And it is my request to you that please give us hands so that our students will get success in future and our school will get fame. And it is my request to Almighty God that God bless you with long life and your blessings will remain on us. So once again, thank you Babaji, thanks to all, Radha Swami. Knowledge. धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून मिला बाबा जी, जो आप हमें दर्शन देने पधारे, जो आप हमें दर्शन देने पधारे. Today we feel satisfied to see Almighty before us, and our soul seems to be free from all sins in the presence of Babaji. We all filled with heavenly peace. Now, our little scholars are going to perform a dance performance in which they show their feelings of welcome to Babaji. चढ़िया नी साडे दिल दी झूमे
भारी थी, बुद्धि और अहंकार पर कोरोना वायरस की भारी थी। खाली सड़कें देखकर तब मन में उठता सवाल था, खाली सड़कें देखकर तब मन में उठता सवाल था, जो सड़कों पर बसते थे उन लोगों का क्या हाल था, जो सड़कों पर बसते थे उन लोगों का क्या हाल था। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुदरत की सत्ता को मानना ही उसका आखिरी विकल्प है। उस समय डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी अब भगवान का दूसरा अवतार माने जाने लगे। जहां डॉक्टर अस्पतालों में दिन रात एक करके मरीजों की जान बचाने में लगे थे, वही पुलिस कर्मचारी सड़कों पर तैनात होकर लोगों को घर से बाहर ना निकल देने की कोशिश में लगे थे, ताकि किसी भी तरह इस बढ़ते हुए वायरस को नियंत्रित किया जा सके। अब हमारे स्कूल के विद्यार्थी कोरोना वायरस के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले उन डॉक्टरों को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, जो एक हॉस्पिटल के सेम रूम में थे। उस रूम में सिर्फ एक ही विंडो था। उन दोनों में से एक का बेड रूम के विंडो के पास था और दूसरे पेशेंट का बेड एक दीवार के पास था। वो दोनों बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन पेशेंट जिसका बेड दीवार के पास था, वो कहने लगा कि वो बहुत लोनली फील कर रहा है, क्योंकि उन्हें क्वारंटाइन किया गया था और वो अपने बेड से उठकर कहीं नहीं जा सकते थे और फैमिली से भी मिले काफी टाइम हो गया था। उसने दूसरे पेशेंट से कहा कि तुम काफी लकी हो, तुम्हें विंडो के पास ही बेड मिल गया, एटलीस्ट तुम बाहर की दुनिया तो देख सकते हो। तो उस दिन से पेशेंट जो विंडो के पास था, उसे बाहर दिखने वाले हर चीज के बारे में बताने लगा। विंडो के बाहर एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन था, जहां एक छोटा सा लेक और फाउंटेन भी था और रात में वहां से सिटी का भी काफी अच्छा व्यू दिखाई देता था। उस पेशेंट का कहना सुनकर वो भी हॉस्पिटल के बाहर की दुनिया को फील करने लगा। उसे ये सब सुनकर ऐसा लगता जैसे वो खुद वहां हो और उसका पूरा दिन अच्छा जाता। एक सुबह नर्स दोनों पेशेंट्स की कंडीशन चेक करने रूम में आई। तब उसने देखा कि विंडो के पास के पेशेंट की डेथ हो चुकी है। उस पेशेंट की मौत नींद में ही हो चुकी थी और नर्स ने हॉस्पिटल अथॉरिटीज को उसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए कहा। दूसरे पेशेंट को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। कुछ दिन बाद वो अपने रूममेट को मिस करने लगा और काफी लोनली फील करने लगा। उसने नर्स से विंडो के पास शिफ्ट होने के लिए पूछा, तो नर्स ने खुशी से उनका बेड शिफ्ट किया और जब उस पेशेंट ने विंडो ओपन किया, तब उसके सामने सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग थी और वहां कुछ नहीं था। वो बहुत ही शॉक हो गया और नर्स से पूछने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहां पर तो देखने जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरे पेशेंट को दिखाई देने वाली सारी चीजें कहां हैं? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला होगा? तब नर्स ने कहा, सर, वो दूसरा पेशेंट जिसे आप एक नॉर्मल इंसान समझ रहे हैं, वो तो एक्चुअली इस हॉस्पिटल के एक बहुत ही ब्रेव डॉक्टर थे। बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते करते उन्हें भी कोरोना हो गया था और उन्हें अच्छे से पता था कि कोविड पेशेंट्स यहाँ अकेले फैमिली से दूर रहकर कैसा फील करते थे।
इसीलिए आपको अच्छा फील करवाने के लिए उन्होंने आपसे झूठ बोला। ये सुनकर वो पेशेंट बहुत रोने लगा। इस पैंडेमिक में कितने सारे लोगों की डेथ हुई, लेकिन ऐसी डेंजरस कंडीशन में भी सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, क्लीनर्स और कितने सारे लोगों ने दूसरों की हेल्प की होगी। सो अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। इस कोरोना की डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिला कर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी यह भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। All enjoyed this appreciable performance. आंगन की चहल पहल है दादी, बाबा की ताजमहल है दादी। अपने सभी बच्चों की मुश्किलों की हल है दादी। सुकून का एक पल है दादी, सुकून का एक पल है दादी। माँ की मीठी लोरी है दादी, दूध जैसी गोरी है दादी। शक्कर की बोरी है दादी, ममता की खुली तिजोरी है दादी, ममता की खुली तिजोरी है दादी। दादी के बिना घर सूना लगता है, दादी बिन दोपहर सूना लगता है। दादी गाथा है, कहानी है, दादी बचपन की एक अनमोल निशानी है, दादी बचपन की एक अनमोल निशानी है। माँ बाप के बाद घर में बच्चों को सबसे ज़्यादा लाड प्यार दादा दादी ही करते हैं और बच्चे भी दादा दादी के बहुत करीब होते हैं,
क्योंकि बच्चों को घर में मारपीट से बचाने वाले दादा दादी ही होते हैं। हमारे स्कूल के विद्यार्थी इसी प्यार और स्नेह को दर्शाते हुए आपके सामने एक डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Time to appreciate Sehajpal Singh, 4th class. तेरे हर हुक्म पर गुजारा किताब है सतगुरु, जिंदगी की किताब है सतगुरु, जो जीना सिखाए वो हर बात है सतगुरु। यूं ना चलना अकेले ही पड़ता है, यूं तो चलना अकेले ही पड़ता है,
जो रास्ता दिखाए वो राह है सतगुरु, जो रास्ता दिखाए वो हर राह है सतगुरु। मुस्कान है जीवन का अनमोल खजाना, मुस्कान है जीवन का अनमोल खजाना, मुस्कान से ही बनता है जीवन सुहाना। सफलता का एक सूत्र याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मुस्कान मत गवाना, चाहे कुछ भी हो जाए मुस्कान मत गवाना। जिंदगी विच हरदम हसते रहो, हसना जिंदगी दी जरूरत है। जिंदगी नू इस अंदाज विच जियो कि तुहानू देख के लोग कहन देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। स्माइल प्लीज। A good laugh heals a lot of hurt. We should laugh always whenever we can, as it acts as the medicine of many diseases. Yes, audience, you absolutely want and need to get some laugh. Now, please welcome our school students who are going to do a comedy skit. किस्मत में लिखा है जो वो सबको मिलता है, किस्मत में लिखा है जो वो सबको मिलता है, पर जो किस्मत में ना हो वो केवल सतगुरु ही दे सकता है, जो किस्मत में ना हो वो केवल सतगुरु ही दे सकता है। जिंदगी तुमने दी है, संभालोगे भी तुम मेरे सतगुरु। आशा नहीं विश्वास है, हर मुश्किल से निकालोगे भी तुम मेरे सतगुरु, हर मुश्किल से निकालोगे भी तुम मेरे सतगुरु। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਵਾਂਗੇ ਬੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਜੀਬ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਮੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਐਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਔਖਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਤੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਦੋ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਨ ਟੱਪ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੀਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? 750 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ। 750 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਓਏ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਣ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਚਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਓਏ 700 ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਲੈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਦੱਸ ਅੱਬਾ ਦੱਸ। ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਪੱਪੂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਭੈਣਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਓਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਬਾ ਸਿਆਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਆਣਾ ਕੱਢ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਵੇ ਚਮੜਾ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਪੱਪੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ
मेरे बच्चा 4 प्लांट जी अब्बा 9 कनाल दे हाँ जी मेरे बच्चा गांव मंडी वाले हाँ जी हाँ मेरे लड़के हाँ ओ मेरे पुੱਤਰ ਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਾਓ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ अब्बा जी सानू कितने दे चलना हाँ जी हाँ मेरे बच्चे अब्बू ਬੱਬੂ अब्बू मेरे बच्चे आवे अब्बू तू बहुत सियाना पुੱਤਰ है अब्बू तू बहुत प्यारा मेरे बच्चे अरे 4 बैरियर्स जी मेरे बच्चे हाँ 9 कनाल हाँ जी जी अब्बा जी मेरे बच्चे हाँ ओ मेरे पुੱਤਰ ਦੇ ਨੇ हाय अब्बू मैं कि मेरी बारी आई है ना मर जाना ही ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਛੇਤੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਓਏ ਪੁੱਛਦਾ ਦੋ ਅਬੂ ਬੱਚਿਆ ਓਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਓਏ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਅਬੂ ਜੀ ਓਏ ਅੱਬਾ 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 ਓਏ ਅਬੂ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਓਏ ਠਹਿਰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਹਾਏ ਓਏ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੰਜੀ ਤੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਦਬਾ ਹੋਏ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਹਾਏ ਓਏ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਏ ਅੱਬੂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਅੱਬੂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਈ ਓਏ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲਾਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਓਏ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਖਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਗਾ ਵਰਤੀ ਹੁਣ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਬੋਲਿਓ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਦਫਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਫਨਾਵੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਹਾਂ ਮੇਰੀ ख्वाहिश ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਓਏ ਬੱਬਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਲਾ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਅੱਬੂ ਯਾਰੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਬਣੇ ਅੱਬੂ ਅੱਬਾ ਓਏ ਅੱਬੂ ਓਏ ਅੱਬਾ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਓਏ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਬਾ 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 ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਅੱਬਾ ਦੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਟਰੀ ਆ ਜੀ ਅੱਬਾ ਉਹ ਅੱਬਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਏ ਹਾਏ
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਂਦੇ ਵੇਂਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਅੱਬਾ ਚੁੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ इसकी जिंदगी बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने जिन्हां ने सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने जी हाँ असीं गल करन जा रहे हां देश भगती दी अज असीं आजाद हवा विच साह लै रहे हां ਇਹ सब उन्हां देश भगतां दी बदौलत है जिन्हां ने अपनी जान दी कुर्बानी दे के सानू आजादी दिलवाई देश को आजाद करवाने के लिए सबसे पहली क्रांति सन 1857 में हुई और इस क्रांति में अपनी जान कुर्बान करके मंगल पांडे जी आजादी के पहले शहीद बने। इसके बाद भारत की जनता में जागृति आई और अनेकों वीरों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी जिनमें से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी आदि का नाम प्रमुख है। इनमें से कुछ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे विद्यालय के विद्यार्थी आपके सामने डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारत के स्वातंत्र की हमारा पहला क्रांतिवीर मंगल पांडे सर, सिपाही कंपनी नंबर 5, रेजिमेंट 34। मंगल 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 सर सुनाए नई राइफल आई है नए कारतूस के साथ। इसे लोड करने से मेरे दांत से काटना पड़ता है। जागे न घर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अपराधे गाँव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ों, जागी है पेड़ों की छाँव। सर इस कारतूस में जो ग्रीस लगा है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है सर और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। इसे आप छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आग ऐसी लगी है दिलों में, ना मुझे भी किसी के बुझाए। अग्नि अग्नि है आंखों से जलती, सर नहीं झुकते हैं झुकाए। हम तो बिगड़े हैं बेमकसदी के, निकले सब अपने घर को जलाए। वो जो आंधी के जैसे उठे, ना दबेंगे किसी के दबाए। खाई सौगंध है ये सभी ने, अब गुलामी को देंगे मिटाए। देखो देखो समय क्या दिखा, देख कर भी नो विश्वास कोई दुनिया से अब जा रहा है। कितने गौरव से सर को धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए। डर है जानी जाती अगर है तो जा। 1928 भगत सिंह साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। लाला जी की मौत का बदला हम लेंगे, स्कॉट की हत्या करनी होगी। पगड़ी सवार झंडा, पगड़ी सवार बोले, पगड़ी सवार झंडा, पगड़ी सवार बोले। ओ तिरंगा जाए मार झंडा, पगड़ी सवार बोले। 8 अप्रैल असेंबली में बॉम्ब फोड़ेंगे, जो जाएगा वापस नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी खुद देगा। गुलामी की जंजीरें बदल अपनी तकदीरें बन जाए, साहिब के पल्ले दर्द की कीमत है।
been murdered in broad daylight. We really don't have a clue who killed him. We have 3 witnesses, sir. Then get me the suspects, you moron. Comb the town, block all exits. Highway checkpoints, bus stands, rail stations. Raid hostels, boarding houses. And if anybody runs, shoot the bastard. समझने की कोशिश करो भगत, तुम्हारी इस भूगर्ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी, क्यों? क्योंकि मैं अन्याय से नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जिलर साहब, नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूँ। कल रात से पानी भी नहीं दिया। अबे सुन रहा है कोई? पानी लो, और पानी तो दे दो बरमियों। पानी लो, ये किशोरी भी तो पागल है। कल रात पूरी एक मुट्ठी लाल मिर्च भाग गया ताकि वो लोग गले में ट्यूब न डाल सके। इस साले ट्यूब नहीं डाल पाएंगे तो खाना कहाँ से खिलाएंगे? सारा गला जल गया है। इंसान की पैदाइश हो या जानवर की, कभी ना बनते भगत। पानी की जगह दूध रखा है सालों ने। दूसरे को भेज, तू थक गया मेरे से नाजायज औलाद से।
बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राजगुरु दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है, खुश कर दिया। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी, फांसी। All three to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका, धन्यवाद। नहीं कड़ी भी लगाएंगे हम। नहीं आप तो लगानी पड़ेगी। और भाई आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम। ओए जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। लगा ले लगा ले। चल तू कह रहा तो ठीक है यार। ला रहने दो, ऐसे ठीक है। शुक्रिया जेलर साहब। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब है आप। लकी, वेरी लकी। कोई आखिरी बात सुन लो होगी। हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो।